uh, our chief guest of the today program, Honorable Shri Balwinder ji. I am really very obliged that from his busy schedule, he has given kind consent to enlighten us on the subject matter. And I'm sure you all are very well aware of this particular subject matter is the key issue in our real estate industry, which we are facing today. So he was kind enough to spare his time from busy schedule. So Honorable Balwinder sir, Shri Amit Modi ji, Shri Deepak Good Kapoor, evening. श्री मनीष कुमार जी, श्री नवल बजाज जी, इस प्रोग्राम में जितने भी डिग्निटी जुड़े हैं और लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको मेरा सादर नमस्कार. I have extreme pleasure to welcome all of you. Now before I proceed further, मैं थोड़ा एक ऑडियंस से एक पोल लेना चाहूंगा कि you can see on your screen that do you think about high importance of RERA in reviving stuck real estate projects? Yes, no, yes, no. Just you have just to give option, yes, no. Because in my view, RERA has to play a key role in reviving real estate projects in time to come. So now what is your feel? What is your view? Just give the quick feel of yourself that how important you think it is important for a RERA, to revive these stuck projects. Just, oh, wonderful, wonderful. So Balwinder sir, this is, I think, a very great insight for us that 100% audience, 100%, not 99%, 100% audience have given us that RERA has the key role in playing the revival of the stuck real estate projects. So I think that is a perfect contest setting for this program. Thank you so much, audience. Thank you so much. Now moving ahead further, so organizers for today program is the Indian RERA Forum. Indian RERA Forum is a dedicated platform for the players of the real estate sector. It facilitates collaborative efforts of all the participants of the real estate sector. This entire area includes builders, developers, promoters, agents, professionals, and buyers. It acts as an knowledge sharing and networking platform to bridge the information gap among the real estate stakeholders in India. The knowledge partner of today's program is the IRS CFO Services LLP. It is a leading company engaged in RERA consulting with prime focus on UP and Haryana, and so far has successfully handled more than 150 real estate projects under its RERA consulting vertical. And in addition, it also provides services in IBC matters, funding, strategic tie-ups, and realty analytics. So, I think you all are very well aware of that India has witnessed many real estate projects which are slipping into the stuck status for quite a long time. And that has made miserable for the buyers who has made huge investments in these housing projects. And because of these housing projects are getting delayed, their money is also on the stake. So just to resolve this issue, we are hosting web series to just discuss the key issues for the benefits of the all stakeholders of the real estate industry. And this program is third in the row. We have already conducted 2 programs earlier, which were very successfully conducted, and this is third in the row. And many more programs are on the board, which we will definitely let you know in due course. So program flow will be like this, that first it will be introduction of the chief guests and eminent speakers. And then there will be address by our chief guest, Honorable Shri Balwinder Kumar. Then address by our eminent speakers, Shri Amit Modi ji, Shri Deepak Kapoor ji, Shri Manish Kumar ji, Shri Nawal Bajaj ji. And after that, we will have presentation of certificates of recognition to our honorable chief guest and eminent speakers. And after that, there will be question and answer session of the program. I take this opportunity to briefly introduce myself. I am a moderator of the program. So by qualification, I am a CMA CS certified corporate director, and I am a director. And after working for around 25 years in various companies at top corporate levels, for last 5 years, I am engaged in a consulting. So I am currently chief mentor of Jain Ventures. So it is a multidisciplinary consulting firm which has many verticals for CFO services and cost management consulting.
I have great pleasure to introduce our powerful, eminent speakers for today's program, who from their busy schedule has given kind consent and spare their valuable time for this program and kindly consented to enlighten us for this particular subject. So Mr. Amit Modi is the director of County Group and president-elect Redai Western UP. He has been one of the key driving forces behind the success of team. His zeal to make the impossible possible has been the inspiration for innovation and creativity in all team projects. The result of his foresight has been world-class projects like Orange County, Olive County, Cherry County, the first and the only project to get full completion certificate in Greater Noida West, an award-winning Asia's best theme-based project, Clio County, which has also been hailed as a best residential project in North India. A graduate from St. Xavier, Kolkata, he also represents the national body of real estate developers, CREDAI, as president-elect Western UP, and plans to invest towards infrastructure development and employment generation in National Capital Region with major projects like Clio Gold, Ivy County, Coco County, and Noida's first ultra-luxury project, County 107, besides other pan-India projects across the nation. Our next speaker is Shri Deepak Kapoor ji. Shri Deepak Kapoor ji is the director of the Gulshan Group, a Delhi NCR-based business conglomerate and a first-generation entrepreneur. The group operates across real estate, both residential and commercial and construction industry. Coming from humble beginnings to becoming a renowned industry in North India, his vision has propelled the group's growth through strategic diversification across all business areas. Mr. Kapoor always believes in working for values as opposed to only financial gains. He has been a recipient of numerous awards and honors over the past few years. He holds a master's degree in business administration from the Faculty of Management Studies, Delhi, and a member of RIGS, CREDAI, and NAREDCO. He has over 3 decades of experience in financial sales, construction, and marketing strategies. He is confident of bridging a transparent and robust relationship between developers, consumers, and the government bodies to streamline the policies for better real estate development. He has recently been awarded and recognized with Kalam Innovation and Governance Award, Dr. APJ Abdul Kalam Memorial Award. And idealistic Mr. Kapoor believes that perfection is not attainable, but if we choose perfection, we can catch excellence. He brings about questionial changes in business and efficiently plans, schedules, and monitors the progress. As a co-founder of the group, Mr. Kapoor has helped implement progressive policy for delivering quality projects on time. Mr. Kapoor has played a major role in improving the quality of second-in-line people by initiating training and skill development program for construction site labor. Believing that learning is a never stop, he himself imparts and participates in selling and soft skill training at all managerial levels. He is covered extremely in the media through print, electronic, and digital avenues across Economic Times, Financial Express, Business Standard, Aaj Tak, NDTV, CNBC TV 18, and all leading online portals. Our next speaker is Shri Manish Kumar ji. Shri Manish Kumar ji is a senior vice president of NEFOA, a member of UP RERA Conciliation Forum. NEFOA is a Noida Extension Flat Owners and Welfare Association. Yeah. Okay. And he works for the benefit of home buyers as well as raising basic infrastructure related civic issue, traffic and pollution with the concerned authorities to get them resolved at the earliest. Our last but not least speaker is Shri Naval Kishore Bajaj ji. He is a chartered accountant, a certified internal auditor, a certified information system, and a forensic accountant. Currently, he is serving as a head corporate audit and assurance for Yokosuhama India Limited and is responsible to provide assurance to the board on internal audit, enterprise risk management, JSOX, and IFC for all operations in India, Bangladesh, and Sri Lanka. In his 15 years experience of working, he has worked with multiple industries such as industry automation, engineering, automobile, IT, ITS, telecom, FMCG, and foreign exchange. He has worked in multicultural environments with professional sailing across India, Japan, Europe, Asia, and US. He is also a member of the expert group of ICAI, making and devising standards on internal auditing and standards on the forensic accounting and investigation. In his personal capacity, he is also serving as the president of Bangalore chapter of Bharatiya Vitta Salakar Samiti,
a leading think tank of finance professionals which advises government on various policy matters related to economy, corporate governance, taxation, etc. Now I have a great pleasure and it is my extreme honor to, and I am extreme honored and I have privilege to share the very, very brief profile of Shri Balvinder Kumar ji. I think it can take a quite thesis kind of thing अगर हम उनकी पूरी एक जितनी उनके अचीवमेंट है लाइफ के, जो उन्होंने जितने भी रोल प्ले करे हैं, की रोल प्ले करे हैं अक्रॉस दी वेरियस इंस्टीट्यूशन, आई थिंक एक पूरी बुक उसके ऊपर लिखी जा सकती है. बट ही इज सो मॉडेस्ट एंड सो हम्बल, उन्होंने बहुत ही ब्रीफ प्रोफाइल मुझसे शेयर करा है, सो दैट आई कैन शेयर for the with the audience. So Honorable Shri Balvinder Kumar ji is a retired IAS officer and a spiritual and motivational writer. Presently, he is a member of Real Estate Regulatory Authority UP. He was also the Vice Chancellor of SGT University in Gurugram before joining his present assignment. Besides being a bureaucrat, he pursued other passions like painting and writing. He made over 100 paintings. He is a teacher and regular practitioner of meditation too. He has published 4 books titled Man's Spiritual Journey, Awakening the Thinking Mind, Redesign Your Life in Modern Age, and lastly, Explore Your Life as a Journey. Friends, I would like to share one very important experience with me. The moment I have shared the detail of this program in my network, I am flooded with the excellent feedback about Shri Balvinder sir. मैं बहुत ज़्यादा तो उनके बारे में सारे फीडबैक नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने एक फीडबैक शेयर करा उनके बारे में, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा. माय फ्रेंड हैज शेयर्ड दैट आई हैड इंटरेक्शन विद श्री बलविंदर कुमार जी a couple of times when he was a joint secretary in Department of Fertilizers. He is a gem of person. I think there is nothing more to tell about Shri Balvinder sir. Over to you, Balvinder sir. Thank you very much, Pankaj ji, for such a nice words. तो बड़ा अच्छा लगा आपने बुलाया. मिस्टर अमित मोती जी, नमस्कार सर. मिस्टर दीपक कपूर जी, मनीष कुमार जी, नमस्कार, नवल किशोर बजाज जी. A great pleasure कि आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा. तो जो टॉपिक दिया गया है वो बेसिकली एनसीआर के स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया. मैं उसी पे ही मुख्यतः बात करूंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा. एंड आई एम श्योर कि आप सबको मालूम भी होगा, बट फिर भी रिकैपिचुलेट कर लिया जाए. रियल एस्टेट की हम जो इसका जो रोल है, भूमिका, इसकी महत्वता, इम्पोर्टेंस हम लोग सब समझते हैं. एग्रीकल्चर के बाद जो है वो लेबर और टेक्सटाइल में ही सबसे ज्यादा जो है वो लेबर है. 4 सेक्टर को कंट्रोल करता है, सीमेंट, देन स्टील, ये सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर निर्भर करती है. और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर का जो एम है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करनी है 2024 तक, और उसमें जो है वो रियल एस्टेट सेगमेंट का जो पार्ट रहेगा वो करीब $1 ट्रिलियन रहेगा. और ये हम सभी जानते हैं कि ये जो लक्ष्य है 5 ट्रिलियन का, ये कभी अचीव नहीं हो सकता जब तक कि हम रियल एस्टेट सेक्टर को ठीक नहीं करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे नहीं. आज के दिन ये पूरी तरीके से शैम्बल्स में है. इतना बुरा हाल रियल एस्टेट सेक्टर का इंडिया में कहीं पे भी नहीं है. और एनसीआर ही पॉकेट ऐसी है जहां पर कि मैक्सिमम इम्पैक्ट हुआ. जो रियल एस्टेट के अंदर जितने भी क्या कहते हैं मेलेडीज और वो सब की वीकनेसेस, वो सब यहाँ पर उजागर हुई हैं. और इवन इनफैक्ट पैंडेमिक आने से पहले ही जो रियल एस्टेट का हाल था वो और ज्यादा खराब हो गया. उसके पीछे 2-3 कारण मेन रहे. एक तो जो है डीमोनेटाइजेशन नवंबर 2016, फिर उसके बाद जो है ये जीएसटी का
इम्पैक्ट पड़ा। और उससे पहले जो है वो 2008 में जब ये रिसेशन स्टार्ट हुआ यूएस में, और उसका इम्पैक्ट फिर जो है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर पे पड़ा। और वही कारण है कि पूरे इंडिया के अंदर जो है रियल एस्टेट सेक्टर की जो है वो खराब हालत हुई। परंतु एनसीआर में आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि 2005, 6, 7 में जो है जो जिस तरीके से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जिस तरीके से लोकल अथॉरिटीज, लोकल पॉलिटिशियंस, स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा, उससे प्रॉब्लम और ज्यादा एग्रावेट हो गई। और यही कारण है कि एनसीआर इज द वर्स्ट पॉकेट इन इंडिया। और अभी जो कई इस बीच में सर्वे हुए हैं, अभी मैं एक एनारॉक की जो है वो रिपोर्ट देख रहा था, उसमें जो है करीब 6.5 लाख यूनिट्स जो हैं 7 जो प्रोमिनेंट सिटीज हैं उसमें स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें 52% प्रोजेक्ट्स, मतलब आधे प्रोजेक्ट्स, करीब 80 लाख से ऊपर, इसमें करीब 5 लाख प्रोजेक्ट्स दिखाए गए हैं। और उसमें से 2.5 लाख प्रोजेक्ट जो है वो केवल एनसीआर के हैं। एनसीआर का मतलब जो है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद। फॉर्चुनेटली नोएडा अथॉरिटी में क्योंकि प्राइसेस काफी एस्केलेट हो गए, और जो है वो नोएडा एक किस्म का दिल्ली का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट हो गया, तो इस वजह से जो दिल्ली से एडजॉइनिंग एरिया है नोएडा का, वहाँ इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट ग्रेटर नोएडा में जो खासकर नोएडा एक्सटेंशन एरिया और गाजियाबाद में जो है सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। और फिर ये भी एक एनजीटी का भी बड़ी प्रॉब्लम रही कि जिस तरीके से आर्बिट्रेरी तरीके से, मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है उस समय यहाँ पे मैं मिनिस्ट्री वगैरह में था, और जो है जिस तरीके से एनजीटी ने जो है वो कार्रवाई की वो बिल्कुल ही गलत तरीके से हुआ, और उससे जो है जो हालत खराब चल रही थी रियल एस्टेट की वो और ज्यादा जो है वो खराब हो गई। बट फॉर्चून खैर जब ये इतनी ज्यादा हुई तो इसी वजह से जो है वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट भी आया, और गवर्नमेंट के द्वारा ये सोचा गया कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए जो इनकी प्रॉब्लम्स, खासकर बायर्स की प्रॉब्लम जो लाखों की संख्या में हो गए थे, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाए। तो उसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाने के लिए जो है वो रेरा 2016 में, बट जो इसके जो रूल्स फ्रेम हुए वो 2017 में हुए, और फिर उसके बाद काफी डिले हुआ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट होने में। और यूपी में फाइनली जो है अगस्त 2018 में जो है वो रेरा का गठन हुआ, और हमको 3 साल जो है वो कंप्लीट अभी हमने हाल में किए हैं। तो बट मुझे इस बात की खुशी है कि दो बहुत जो डिस्टिंक्ट चीजें हुई हैं इस 3 साल की अवधि में, वो ये हुई है कि सबसे पहले जो है वो बायर्स में कॉन्फिडेंस आया है। और अभी पंकज जी ने जो एक सर्वे किया, हालांकि वो सर्वे रिप्रेजेंटेटिव सर्वे नहीं माना जाएगा, बट तब भी लोगों की भावनाओं को वो दर्शाता है कि सभी लोगों का ये मानना है कि स्ट्रक प्रोजेक्ट्स में रेरा का इम्पोर्टेंट रोल है। और तो ये जो बायर्स का कॉन्फिडेंस आया वो सबसे मेन पॉइंट रहा। और खासकर जो नए प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए 2018 के बाद, 17 और 18 के बाद, उसमें जो एस्क्रो अकाउंट का प्राविधान रखा गया, तो अब बायर्स को ये लगता है कि जो पैसा उनके द्वारा जमा किया जा रहा है वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। तो इसलिए उस
उस पैसे की जो है वो फाइनेंशियल जो है डाइवर्जन पैसे का वो नहीं होगा। तो दिस इज द one of the main reasons that people have confidence in this institutional framework of RERA। और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज इस बीच में हुई कि प्रमोटर्स के बीच में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो आया है। खासकर वो सारे प्रोजेक्ट्स जो रेरा के टाइम पर रजिस्टर हुए हैं उनमें डेफिनेटली जो है हम लोग कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स इनवेरिएबली जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ऑन टाइम चल रहे हैं। एस्क्रो अकाउंट मेंटेन्ड है, बायर्स का पैसा 70% एस्क्रो में जा रहा है और वो कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए खर्च हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। तीसरा जो मेन पॉइंट हुआ वो ये हुआ कि क्योंकि जो लीगेसी थी, जो लोगों बायर्स की जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो ग्रीवेंसेस थी, कंप्लेंट्स थी, इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए जो है वो रेरा का जो है वो मेन मैंडेट था कि उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। और आपको जानकर जो है वो ताज्जुब होगा कि 37,000 कंप्लेंट्स जो है वो यूपी के अंदर हुई हैं और उसमें से एनसीआर की जो है वो 27,000 कंप्लेंट्स, मतलब अब तो 28,000 होगी, 28,000 कंप्लेंट्स केवल एनसीआर क्षेत्र की हैं और उसमें से करीब 21,600 कंप्लेंट्स का जो है वो निस्तारण रेरा ने इस बीच में किया है। हालांकि ये एक ऐसा पॉइंट है कि हम इसमें बहुत ज्यादा सेटिस्फाई इस चीज से नहीं है एंड आई एम श्योर आप भी रीजन जानते हैं, क्योंकि अभी भी जो ऑर्डर्स रेरा ने हुए हैं उसकी जो है पूरी तरीके से कंप्लायंस जो है वो नहीं हो पाई। और उसके पीछे मेन चीज वही है कि जो प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं वो प्रमोटर जो है पैसा बायर्स का नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं। फिर इस बीच में जो एक और मेन डेवलपमेंट हुआ वो पेंडेमिक का हुआ। उससे पूरी तरीके से लाइफ में काफी हमारे हर पहलू, जिंदगी के हर पहलू में जो है वो परिवर्तन जो है आया है और कई परिवर्तन जो है वो स्थायी रूप से हैं और अभी हाल में जो है नियर फ्यूचर में वो मतलब नॉर्मल स्थिति अभी आने में बहुत टाइम लगेगा। इस पर जो है रियल एस्टेट जो ऑलरेडी एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम से गुजर रहा था उसमें और ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम उसमें ऐड हो गई। उसको दूर करने के लिए खैर हम लोगों ने जो है जब लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, तब 6 महीने का हम लोगों ने जो है उसको फोर्स मेजर डिक्लेयर किया था ताकि जो एक्सटेंशन है प्रोजेक्ट्स का वो 6 महीने की अवधि के लिए हमने बढ़ाया था। और इसके अलावा उनको ये भी बेनिफिट दिया गया था कि प्रमोटर्स को कि वो 6 साल की डिले पेनल्टी भी वो नहीं देंगे इस दौरान में। इसके अलावा फिर जब ये पैंडेमिक का जो वेव 2 आया, जब ये सेकेंड वेव चली, तो उस बीच में हालांकि फॉर्मल तरीके से लॉकडाउन तो नहीं था, बट ये बात सही है कि एनसीआर में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स का काम सफर किया और क्योंकि लेबर जो है वापस अपने अपने जिलों में और प्रदेशों में चली गई थी, उस वजह से तो उसको क्रेडाई ने और ऑफ कोर्स नारेटको और बाकी प्रमोटर्स एसोसिएशंस ने जो रिप्रेजेंटेशन दी उस पर विचार करते हुए हम लोगों ने फिर यूपी भर में 6 महीने का और एनसीआर में हमने 9 महीने का एक्सटेंशन दिया। बट ये एक्सटेंशन हमने उन प्रोजेक्ट्स को हम दे रहे हैं
केस टू केस बेसिस पर जो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए सीरियस है। Otherwise, we are not giving this benefit across the board to the promoters. तो उसमें हम लोगों ने काफी जो है इस बीच में हम लोगों ने ये एक्सटेंशन को जो है हमने दिया है। अब यदि हम स्टक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस बीच में हम लोगों ने पैंडेमिक में ऑफ कोर्स हम लोगों ने एक तो ऑनलाइन हियरिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी। इनफैक्ट रेरा यूपी रेरा पहली एक इंस्टीट्यूशन थी इंडिया के अंदर जिन्होंने हमने ऑनलाइन केसेस की जो है वो सुनवाई शुरू कर दी थी, इवन बिफोर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो इसमें ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है। मैं एक स्टेटमेंट है उसको उसके जो फैक्ट्स फिगर्स हैं वो मैं बता रहा हूँ कि हमारे टोटल ऑनलाइन जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो 1368 हैं, 1368। और उसमें जो लैब्स प्रोजेक्ट है जिनका की रजिस्ट्रेशन लैब्स हो चुका है वो है 758, मतलब 760 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लैब्स हैं। और उसमें यदि हम डेवलपमेंट अथॉरिटीज के प्रोजेक्ट्स को निकाल दें तो 683 जो है वो टोटल जो है वो लैब्स प्रोजेक्ट्स हैं। बट इस बीच में जो है करीब 314 प्रोजेक्ट्स की ओसी और सीसी जो है वो जमा कर दी गई डेवलपमेंट कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। तो आज के दिन जो है वो 369 जो है वो टोटल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्टक हैं। और अभी हाल में हम लोगों ने पिछले एक महीने से हम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका की रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गया है या जिनका की मैप एक्सटेंशन लैप्स हो गया है उनको हम बुला रहे हैं। रोज 20-20, 25-25 लोगों को बुला रहे हैं प्रमोटर्स को, और उसमें से करीब 50-60% आ रहे हैं। और हम केस टू केस बेसिस पर हम एग्जामिन कर रहे हैं कि व्हाट बेस्ट वी कैन डू। तो हमने ये भी कर दिया है और अब हम कि 1 साल का जो एक्सटेंशन है वो रेरा के अंतर्गत एक्ट के अंदर ही, अधिनियम के अंदर ही जो है इसका प्रोविजन है कि 1 साल जो है वो प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन लिया जा सकता है। उसके अलावा 6 महीने, और अभी मैंने बताया कि एनसीआर के अंदर 9 महीने। तो इस तरीके से हम इतना एक्सटेंशन जो है वो प्रोजेक्ट को दे सकते हैं बशर्ते कि वो दिसंबर 21 तक उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ले। दूसरा जो है वो मैप की वैलिडिटी होनी चाहिए। और अब क्योंकि बहुत लोगों को नक्शा नहीं मिल पा रहा तो हमने ये भी रिलैक्स कर दिया कि यदि वो एक एप्लीकेशन दे देते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज में इसके एक्सटेंशन के लिए मैप का, तो क्या हम उसको मान लेंगे। परंतु बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर कि 2 साल 2.5 साल देने के बावजूद भी उनकी वैलिडिटी जो है वो दिसंबर या उसके बियॉन्ड तक नहीं जाती। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि यदि वो बायर एसोसिएशंस को लेके आ जाते हैं, प्रमोटर्स लेके आते हैं, मतलब 51% जो अलॉटीज हैं उनकी यदि कंसेंट लेके आते हैं तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के एक्सटेंशन पर भी विचार कर सकते हैं। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है और ये इंडिया में कहीं नहीं है। और हम लोगों ने ये इसको प्रोविजन को लागू किया है। एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, नीलकमल जजमेंट, उसका हमने सहारा लेते हुए ये लिया है। बट हम इसके बियॉन्ड एक्सटेंशन तभी देंगे जब बायर एसोसिएशन को लेके आएंगे। और हमें इस बात की खुशी है कि बायर्स भी
जो है वो आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो, और इस वजह से वो प्रमोटर का साथ देने को तैयार है। दूसरा जो अब हमारे सामने जो चैलेंज है, जो एक बहुत जो सीरियस चैलेंजेस हैं हमारे सामने, 2-3 हैं बड़े चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें जो हम फेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि रेरा के ऑर्डर्स की कंप्लायंस अभी भी बिल्डर्स नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली एक्ट के अंदर हमें कोई पावर नहीं है कि हम प्रमोटर के खिलाफ एक्शन लें, उसके एसेट्स को सीज करें, उनके एसेट्स को हम जो है ऑक्शन करें। हम रिकवरी सर्टिफिकेट जो है वो डीएम को भेज देते हैं, और डीएम ने करीब 30-32 प्रमोटर्स के एसेट्स को भी सील किया है, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर अभी कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच में हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कि वो ई ऑक्शन का प्रोविजन जो है वो लागू करें। जब तक प्रॉपर्टीज जो ये फ्लैट हैं खाली या टावर्स हैं पूरी की पूरी खाली, वो तब तक ऑक्शन नहीं हो पाएंगी जल्दी से, जब तक कि ई ऑक्शन का रूट हम नहीं लेंगे। तो यदि हम ई ऑक्शन करते हैं और एक रीजनेबल प्राइस हम फिक्स कर दें उनके जो फ्लैट्स हैं जिनको की सील किया गया है, तब तक जो है बहुत डिफिकल्ट है पैसा रिकवर करना। तो ये जो है एक चैलेंज हम लोगों के सामने है, और हमें उम्मीद है कि जब ये ई ऑक्शन का प्राविधान लागू हो जाएगा, तब फिर ऐसे सील्ड एसेट्स का डिस्पोजल जो है वो जल्दी से हो पाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज वो यही स्टक प्रोजेक्ट्स का है। अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे पड़े हैं जहां पर कि प्रमोटर का ये कहना है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। अब वो बात एक वो अलग क्वेश्चन है कि जो पैसा बायर्स ने दिया वो पैसा कहाँ गया। बहरहाल जो है वो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम की वजह से वो आगे प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पा रहे, और उनको बैंक्स भी जो है वो फाइनेंसिंग नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजंस। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का क्या किया जाए वो एक चैलेंज है, और इसी चीज को ध्यान में रख के हम लोगों ने अब हम बायर्स को ये हम कह रहे हैं कि आप एसोसिएशन बनाएं। हालांकि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की एसोसिएशंस बनी हुई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जहां पर कि ये बायर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। बट जैसे प्रोजेक्ट में सपोज करो कि 400 लोग हैं, तो मुश्किल से 101 लोग हैं, बायर्स हैं, जो आपस में जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। परंतु हमें 51% मेजोरिटी चाहिए, तो वो मेजोरिटी जो है वो नहीं हो पा रही। तो ये एक चैलेंज है कि इसमें बायर्स को जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वहाँ तो ये बायर्स एक्टिव मतलब जहां पर उनको इंटरेस्ट है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, और वो उसका इंटरेस्ट जो है वो इसी कारण होता है कि यदि प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी है और उनको लगता है कि ये प्रोजेक्ट अगले साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो आ रहे हैं। तो हमने इस बीच में करीब 8-10 प्रोजेक्ट्स में हम लोग सेक्शन 8 के अंदर कि जहां पर कि बायर एसोसिएशन ने अपनी कंसेंट दी है और प्रमोटर भी आया है, उसने कहा है कि हम जो हमको पैसा लगाना है हम पैसा लगाएंगे, और हम ये भी उसको सहूलियत दे रहे हैं कि इस बीच में हम और रिकवरी सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे और वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। तो ये एक इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है और उसके अच्छे परिणाम हुए हैं। प्रमोटर्स भी अब
जो है वो आ रहे हैं और बायर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं कि वो सेक्शन 8 का जो है वो रूट ले और इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट करें। और कुछ में जो है 2-3 मामलों में जो है वो प्रमोटर भी अब नए ला रहे हैं और उसका भी हम लोग उनको भी हम प्रपोजल्स को प्रोसेस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रेरा जो है इसमें बहुत प्रोएक्टिवली हम लोग एंड सीरियसली हम लोग चाहते हैं कि बायर्स को जो है वो अपने फ्लैट्स जो है वो मिल जाए। बट चैलेंजेस जो है वो बहुत सीरियस हैं और जब तक ये तीनों स्टेक होल्डर मतलब रेरा, प्रमोटर्स और बायर्स सारे इकट्ठे होके और कोऑर्डिनेटेड तरीके से आगे नहीं आएंगे तब तक प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अभी जो हम लोगों ने कार्रवाई की है 10, 15, 20 प्रोजेक्ट्स में कार्रवाई हो रही है, बट यहाँ पे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बुरी तरीके से स्टॉल्ड पड़े हुए हैं। वहां हम लोगों को जो है ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। एंड आई एम श्योर कि जो पंकज जी ने ये जो इनिशिएटिव लेके जो ये आज डेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं, इसमें अच्छे सजेशंस आएंगे और हम लोग पूरी तरीके से ओपन हैं, वी आर ओपन माइंडेड कि चाहे विद इन द एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में हम लोग जो है ओपन है कि ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिससे कि प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो। तो यही मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहना चाह रहा था और यदि कुछ और यदि क्वेश्चंस आंसर होंगे तो हम फिर एंड में उसका फिर हम जवाब दे पाएंगे। So thank you very much. Thank you. थैंक यू सर एनलाइटनिंग अस ऑन दिस सब्जेक्ट। और मुझे लगता है कि जो रेरा की टैगलाइन है वो आपने बिल्कुल सही शोकेस करी है अपने काइंड वर्ड से कि रेरा है तो भरोसा है। तो वो हमारे ऑडियंस ने भी जो है इस चीज को है समझा है। इसमें देखिए मोर और लेस एक्सेप्शन हर चीज में होते हैं और अभी हमको ये भी देखना चाहिए कि रेरा इज एन इवॉल्विंग स्टेट। हमारे पास जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं इंडिया में, एस्टेब्लिश्ड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ ओवर डिकेड्स के बाद जो है उनमें जो है वो स्टेबलाइजेशन हुआ है। So I think we should give the proper time to the RERA also themselves, they can evolve। और जब आपने जैसे कहा है कि आप बड़े ओपन है, ओपन माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव के साथ काम कर रहे हैं, तो आई थिंक बायर कैन होप वेरी वेरी हाई होप्स फ्रॉम द RERA। नाउ आई इनवाइट श्री अमित मोदी जी टू शेयर हिज डेलीब्रेशन। या गुड इवनिंग एवरीवन। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, ये बीच में कोई कॉल आ रही है जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। या पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डायस नॉन डायस सभी को, डायस पे कोई नहीं है, सभी को मैं वेलकम कर रहा हूँ। बलविंदर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना समय दिया और जो उन्होंने बोला वो एक राइट पिक्चर सर ने प्रेजेंट करी है, जिसके अंदर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटेंट उन्होंने बताया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम चाहते हैं और जिसमें 20% कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट का है। और इसके लिए अपने को अभी तक जो लॉज फ्रेम हुए हैं उसके अलावा अपने को कुछ नए लॉज भी फ्रेम करने पड़ेंगे। जैसे रेगुलेशन, आज रेरा आया तो रेरा से ना बहुत चीजें जो पहले व्यवस्थित नहीं थी अभी व्यवस्थित हुई हैं और इसका रिजल्ट भी धीरे धीरे देखने को मिलेगा। और जैसा कि अभी आपने मेंशन किया कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को डिकेड्स लग गए सेटल होने में, अब रेरा भी जो है मैं ये समझता हूँ हालांकि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरह के ऑर्डर्स रेरा कर रही है उससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। हाँ, वो कुछ चीजें कंप्लायंस डेवलपर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जरूर देखना है कि उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या वो उनका इंटेंशन है कि उनको कंप्लायंस नहीं करना है या वो कर नहीं पा रहे हैं। इसी की फाइंडिंग्स के लिए अपने को कुछ लॉज और बनाने पड़ेंगे, जिसके अंदर मेरा सजेशन ये है कि को डेवलपर पॉलिसी एक अगर जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना के अंदर में, तो इसके लिए को डेवलपर की पॉलिसी आए
और किस तरह से प्रोजेक्ट को नेटवर्थ पॉजिटिव किया जाए, जिससे कि फंडिंग मिल सके, बायर्स को उनके मकान मिल सके, और जो को डेवलपर आए वो एक रिंग फेंस उसको हो और वो मकानों को डिलीवर कर सके और खुद भी उसमें से कमा के बाहर निकल सके। जब तक ये पोजीशन नहीं आएगी, जब तक रेरा जो ऑर्डर कर रही है वो भी कंप्लायंस होने मुश्किल होंगे और प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट होना मुश्किल होएगा। सो अपने को वी हैव टू सिट एंड डिस्कस दीज लार्ज इश्यूज की किस तरह से प्रोजेक्ट नेटवर्क पॉजिटिव होंगे। अब सर ने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर चुकी है, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा बोलने लायक नहीं बचा हुआ है। लेकिन जैसे कि सर ने ये कहा कि ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, ऐसी स्थिति आज ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और सडनली जो है ये इतनी इस तरह से पहुंच गई कि रेरा की एक इसमें रेगुलराइजेशन की जरूरत पड़ी। इससे पहले कभी रेगुलराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। आज स्पेशली अगर एनसीआर के अंदर में अपने देखें तो देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम जो आई वो यहाँ पे 2009 में जो प्रॉब्लम चालू हुई वो फार्मर एजिटेशन लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम अथॉरिटीज के चालू हुए। लोगों ने उस टाइम पे इंडिविजुअल फंडिंग भी ली हुई थी, बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग ली हुई थी और एक स्टैगर्ड पेमेंट अथॉरिटी से लैंड ली हुई थी। इस फार्मर एजिटेशन जो है वो 2009 से लेके 2012 तक फार्मर एजिटेशन चला और जब वो एजिटेशन खत्म हुआ लोगों के ड्यूज तब तक इंटरेस्ट के साथ में इतने ड्यूज बढ़ चुके थे कि सर्वाइवल डेवलपर्स का बहुत मुश्किल था और मार्केट में इकोनॉमी भी थोड़ी सी टर्मोल में थी उस टाइम पे। बट सडनली फिर एनजीटी का इश्यू आ गया जो कि 2013 अगस्त से लेकर 2015 अगस्त तक का चला। उस दौरान भी अथॉरिटीज वगैरह से डेवलपर्स को कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उस टाइम पे फंडिंग जो है होम लोन्स की फंडिंग भी बंद करी और भी चीजें बंद करी। और फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो अच्छे डेवलपर्स थे जो अपनी फंडिंग से कर रहे थे, जिन्होंने फंड्स को जो लोग मकान बेच के जो उनके पास फंड आया उसको साइफन ऑफ नहीं किया, वो सरवाइव कर पाए अपने आप को किसी भी तरह से। बट सडनली फिर एक अनफोर्सीन प्रॉब्लम डिमोनेटाइजेशन की आ गई, उस टाइम पे मार्केट डिस्टर्ब हो गई, जीएसटी की प्रॉब्लम आ गई, उससे डिस्टर्ब हो गई और उन सब चीजों से निकलते निकलते अपन 2019-20 में पहुंचने के बाद में पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। तो इस तरह की रेगुलर अगर आपने देखे तो एनसीआर के अंदर में 2009-10 से इस तरह की प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअस चलती रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस एसेट्स जो है अपने इस टाइम पे उनको कैसे उनको कंप्लीट किया जा सकता है। तो बलविंदर सर ने जो अभी सजेस्ट किया कि भाई आज जिस ढंग से उनपे 30% पैसा जो बायर्स का एस्क्रो अकाउंट में रखा जाता है और 70% से डेवलपमेंट करी जाती है, वो ये सारी चीजें अपने को बहुत बेनिफिट दे रही हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर में आदमी डेवलपर को भी ये पता चल गया है कि ये सारे फंड को अगर मैं इधर से उधर करने की कोशिश करूंगा या ओवर ट्रेडिंग करूंगा तो मैं फंस सकता हूं। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स तो इसमें डेफिनेटली ये है कि अच्छे ठीक चलेंगे, पर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में जब तक को डेवलपर की कोई पॉलिसी नहीं आएगी, जब तक मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से ये काम कंप्लीट होंगे। अगर जो स्ट्रेस एसेट्स है उनके पास कोई खाली लैंड अगर बची हुई है और उसको वो किसी थर्ड पार्टी को कोई अच्छे डेवलपर को अगर निकाल सकें और उस पैसे से बचे हुए मकान कंप्लीट कर सकें, इस तरह का भी कुछ प्रोजेक्ट्स में हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी हो, कुछ प्रोजेक्ट्स में इस तरह की पॉसिबिलिटी ना हो। तो ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा कि वो प्रोजेक्ट इस स्थिति से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। रेस्ट मेरे ख्याल से सर ने सारी चीजें कंप्लीट अपनी तरफ से कर दी हैं। तो मैं एक बार सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, दीपक जी का, मनीष जी का, नवल किशोर जी का। सभी लोग हैं, सब एमिनेंट स्पीकर हैं। मैं कोई बहुत अच्छा बोलना नहीं जानता हूं, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सभी की प्रॉब्लम सेम है और किसी भी तरह से विश लिस्ट ये है कि जल्दी से जल्दी मकान कंप्लीट करने के अंदर में जो एक सहयोग मिल सकता है वो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कि ऑलरेडी आया हुआ है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए कि 2010 से जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर में जो ड्यूज है उनको कर दिया जाए तो बहुत उससे सहयोग मिलेगा। फिर फार्मर कंपनसेशन का भी ऑर्डर आया हुआ है हाई कोर्ट से, अगर उस फार्मर कंपनसेशन के अंदर भी रिलीफ मिलती है तो मैं समझता हूँ कि डेवलपर्स जो है वो नेटवर्क पॉजिटिव में आएंगे, उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंडिंग कर पाएंगे तो वो लोग प्रोजेक्ट करने की स्थिति में पैदा हो जाएंगे। तो ये एक विश लिस्ट है, पर उसके लिए मेरे ख्याल से समय लगेगा और ये किस तरह से अचीव हो सकता है इसके अंदर में डेफिनेटली सारी जो बायर्स एसोसिएशन है उनका भी योगदान बहुत जरूरी है। और रेरा की तरफ से मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि बलविंदर सर बहुत ही पॉजिटिव है, राजीव सर बहुत पॉजिटिव है और किसी भी तरह से ये
गोल अचीव करना चाहते हैं तो सबको मिलजुल के अगर ये किया जाए तो मेरे ख्याल से अचीवेबल है। पर सरकार को भी इसके अंदर में ये को डेवलपर की पॉलिसी जरूर लेके आनी पड़ेगी और उसको रिंग फेंस करना पड़ेगा, जिससे कि सारे प्रोजेक्ट जो कि प्रेजेंट डेवलपर अगर नहीं कर पा रहा तो दूसरा डेवलपर आके उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए। और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस होंगे तो आई एम रेडी, देन आई कैन स्पीक लेटर आल्सो। थैंक यू अमित जी फॉर शेयरिंग वंडरफुल इनसाइट्स। आई थिंक ऑडियंस को जो है काफी आपने इनसाइट्स दी, और तुमने जो आपने बताया कि को डेवलपर की पॉलिसी, बिकॉज नोएडा ने भी जो है ये एक पॉलिसी निकाली थी को डेवलपर जी मैं ये पॉलिसी निकाली थी, लेकिन 2017 के बाद में ये नहीं आ पाई है और सारी प्रॉब्लम्स ही 2017 के बाद सरफेस होने लगी, क्योंकि रेरा ने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली हैं इन ईच एंड इंडिविजुअल की। और अगर ये पॉलिसी आके रिंग फेंस हो जाए, वो जो नए डेवलपर आए और उनको फंडिंग भी मिल जाए और उनके ऊपर में पुराना कोई रिस्क, किसी तरह की क्रिमिनल लायबिलिटी या फाइनेंशियल लायबिलिटी पुराने प्रोजेक्ट की वजह से नहीं आती है, तो शायद प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में बहुत आसानी होगी। नहीं, थैंक यू सो मच सर। जो आपने ये रिंग फेंस की बात करी है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी नया डेवलपर अगर आता है तो वो चाहेगा कि पुराना किसी भी तरह की लाइबिलिटी या सरदर्दी उसके सर पे नहीं आए। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत जरूरी है कि कोई भी अगर पॉलिसी बनाई जाए तो नए डेवलपर के ऊपर पुरानी भी जो भी लाइबिलिटीज हैं, पुरानी जो भी इस तरह के बर्डन है, वो उसको शिफ्ट नहीं करे जाए उसको। तो आई थिंक दैट इज ए वंडरफुल इनसाइट फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच अमित मोदी जी। नाउ आई वुड इनवाइट दीपक कपूर जी टू शेयर हिज थॉट्स। दीपक कपूर जी। हाँ, नमस्कार पंकज जी। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है जी, आ रही है। जी नमस्कार, वंस अगेन बलविंदर जी नमस्कार। एंड सारे जो भी इस डिजिटल फोरम में अवेलेबल हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार। ये टॉपिक पंकज जी ने बलविंदर जी से गाइडेंस लेके बहुत अच्छा चुना है, दैट द रेरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ओवरटेकिंग एंड मेकिंग द real estate a very transparent and open industry is very commendable, और उसकी हम आज रूपरेखा देख रहे हैं और वो स्टक प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है जो आज का मेन टॉपिक है। तो उसके लिए मेरा सिर्फ इसमें यही कहना है कि काफी बातें तो हमारे माननीय बलविंदर जी ने और अमित मोदी ने अभी बता दी हैं, तो मेजोरिटी सारी बातें घूम फिर के हम जितनी मर्जी लंबी चर्चा कर ले, नेट रिजल्ट यही है। इसमें मैं एक फैक्टर ऐड करना चाहूंगा कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम इवॉल्व होते हैं। पहले ये अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री थी, अब रियल एस्टेट एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बन गई है। अब रियल एस्टेट में रेरा इज अ रियलिटी विच इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप इन दिस डायरेक्शन। इतनी बढ़िया चीज रियल एस्टेट को नहीं मिल सकती है, और इसमें हमने देखा कि ट्रांसपेरेंसी की ओर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड इसका सारे ही उपभोक्ताओं को भी बहुत फायदा हुआ है। कंज्यूमर को काफी लेवल तक अब इसमें सेटिस्फैक्शन मिल गया है, और कंज्यूमर का ट्रस्ट जो बिल्कुल ही खत्म हो गया था रियल एस्टेट की तरफ से, वो वापस आना शुरू हो गया है। थैंक्स टू रेरा एंड थैंक्स टू द ऑफिसर्स ऑफ रेरा, उसमें बलविंदर जी की कंट्रीब्यूशन, राजीव जी की कंट्रीब्यूशन, एंड रेरा अथॉरिटी ने जो एक रिकंसिलिएशन मैकेनिज्म शुरू किया, जिसके अंदर उन्होंने एक बड़ा ही ओपन प्रैग्मेटिक प्लेटफॉर्म बनाया। उस प्लेटफॉर्म में दे कॉल ईदर द डेवलपर और देयर रिप्रेजेंटेटिव, और वो जो एग्रीव्ड कंज्यूमर है जिसको सेवाएं नहीं दे पा रहे थे डेवलपर किसी वजह से, उनको आमने सामने बैठा के उनके बीच में वार्तालाप करा के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना इज ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म। एंड सबसे कम समय में इसमें काफी अहमियत की गई, काफी मेहनत की गई, एंड रिजल्ट्स अभी बलविंदर सर ने बताया है कि टोटल कितनी सारी कंप्लेंट्स थी, आई थिंक इट वाज इन थाउजेंड्स, एंड उसमें कितनी सारी रिजॉल्व हो गई हैं। 37,000, 28,000, 21,600 रिजॉल्व हो गई हैं यूपी में, एनसीआर में। तो इस नंबर गेम से हमें पता चलता है कि रेरा कितनी एक्टिवली काम कर रही है एंड कोशिश कर रही है कि कंज्यूमर्स को उनका हक दिलाया जाए, और कंज्यूमर्स को उनको जो भी उन्होंने रियल एस्टेट एसेट खरीदा है वो उनको पोजीशन दे दिया जाए। इसके अलावा मेरा इसमें ये कहना है कि हम एक्चुअल में जब बात करते हैं तो मैं देखता हूँ कि हमारे अंदर एक ही इशू है जिसको हमें एड्रेस करना है, चाहे वो डेवलपर की साइड से हो, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज की तरफ से हो, चाहे वो रेरा की तरफ से हो। वी हैव ए रेजिस्टेंस टू चेंज विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी डायनामिकली, वेरी फास्ट, बट आवर पॉलिसी, प्रोसीजर, टर्मिनोलॉजी एंड वो सब चीजों में चेंज होने में काफी टाइम लग रहा है। एंड इसी की वजह से यही गैप है जिसकी वजह से अभी भी स्टक प्रोजेक्ट एक वापस में एक स्पीड से काम कंप्लीट करके कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पा रहा है।
उसमें मेरा कहना यह है कि पहले होता था कि एक डेवलपर लैंड लेता था और उसको डेवलप कर देता था। आज की रियलिटी यह है कि अगर वो अपनी फाइनेंशियल क्षमता से कंप्लीट कर पाता तो हमारा ये जो आज एक वर्ड आया स्टक प्रोजेक्ट, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई स्टक प्रोजेक्ट होता ही नहीं। सिंस हमने देख लिया कि उसकी फाइनेंशियल क्षमता नहीं है, वो किसी वजह से भी उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाया है, तो उसमें किसी और के आने की जरूरत है। उसी टॉपिक को अभी मेरे दोस्त अमित मोदी ने ये एड्रेस किया कि को डेवलपर पॉलिसी आनी चाहिए। मेरा इसमें और कहना है कि बड़ी सारी नई टर्म्स आज के चेंजिंग एनवायरनमेंट में आ गई है, जिसको हम ज्वाइंट वेंचर के नाम पे बोलते हैं, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के नाम पे बोलते हैं, को डेवलपमेंट के नाम पे बोलते हैं, इसमें हम डेवलपमेंट मैनेजमेंट डीएम मॉडल के नाम पे बोलते हैं। तो इतनी सारी व्यवस्था है जिससे अगर हम इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसमें काफी स्टक प्रोजेक्ट बड़ी जल्दी आने वाले 2-3-4 साल में कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारी जो अथॉरिटीज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, उनमें इनकी एप्लीकेबिलिटी या एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। सिंस एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो वो बड़ा ही परेशानी का घर है कि एक डेवलपर जो दूसरे दोस्त को ठीक करने के लिए उसकी प्रॉब्लम में सहायता करने मददगार बन के आना चाहता है और एज ए कोड डेवलपर आना चाहता है, लेकिन उसको किसी भी फॉर्म में मान्यता प्राप्त नहीं होती है। तो आज अगर कोई भी आएगा और मान्यता प्राप्त नहीं होती तो वो उसमें फिर क्वेश्चन मार्क आता है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरा कहना है, स्पेशली मैं एड्रेस करूंगा बलविंदर सर को, क्योंकि रेरा अथॉरिटी की गवर्नमेंट भी सुनती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो जब भी सर आपको मौका मिले, हमारी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये कुछ इश्यूज हैं कि आप चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो भी नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं उसमें रेरा इन चीजों को मान्यता प्राप्त करवाए थ्रू डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी वजह से नए नए लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ेंगे और जो भी स्टक प्रोजेक्ट है उनके अंदर मिल के इन प्रोजेक्टों को बाहर निकालेंगे और कंज्यूमर्स के जितने भी पैसे फंसे हुए हैं उनको उनका घर का सपना पूरा होगा और उनको उनकी चाबी मिल पाएगी। इसी में ही मेरा सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि जैसे हम कोर्ट ने एक सोल्यूशन दिया कि जो एप्लीकेबल होना था कंप्लीट नोएडा जोन में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना में, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हो पाई। ये 1-1.5 साल से ज्यादा हो गया है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड यही रही तो फिर हम कैसे प्रोजेक्टों को पूरा कर पाएंगे। आज हालत ये है कि अगर वो कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो काफी लोग जो अभी एक कैटेगरी में खड़े हैं कि ये डिफंक्ट प्रोजेक्ट हो गए हैं, उनको उनके अंदर फिर एक जान आ जाएगी। उनके अंदर जैसे अभी मेरे दोस्त ने बोला, नेटवर्क पॉजिटिव नजर आएंगे तो उसमें रेव होप होगी और वो काम शुरू हो जाएगा। तो मेरी बलविंदर सर से रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, इनकी इम्प्लीमेंटेशन सर हम जितनी जल्दी कर पाएंगे उतनी फास्ट ट्रैक में हम स्ट्रक प्रोजेक्टों को से बाहर आ पाएंगे। मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये है सर कि आपने देखा पेंडेमिक में यू बीन वेरी ह्यूमन, रैशनल एज एन अथॉरिटी और एज एन इंडिविजुअल एज वेल। तो आप लोगों ने डेवलपर की प्रॉब्लम को सुना और उसमें पहली बार भी 6 महीने का एक्सटेंशन दिया, दूसरी बार भी 6 और 9 महीने का एक्सटेंशन दिया, जिसको आपको लगा कि हाँ भी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेबर नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई रिजॉल्व नहीं कर रहे, तो इनको थोड़ा सा समय देना चाहिए, तो आपने टाइम एक्सटेंशन दिया। बट मेरा कहना है सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं दिया। सारा काम बंद था, लेकिन उनके इंटरेस्ट और पेनल इंटरेस्ट सारी डेवलपर कम्युनिटी पे लगते रहे और आज तक भी लगते जा रहे हैं। ये कहाँ की व्यवस्था है कि एक तरफ तो जब पूरा वर्ल्ड चिल्ला रहा है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को भी एक सपोर्ट और एक रिकंसिलेशन मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे यही रिक्वेस्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी एंड रेरा अथॉरिटी से भी कि हमें सब चीजों को बड़ा रैशनली देखना चाहिए। हाँ, कहीं गलत हुआ है तो वहां किसी को कोई भी एडवांटेज नहीं दी जाए, बट एक जेन्युइन कॉज है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का बर्डन, जिसकी वजह से आज मोस्ट ऑफ माय डेवलपर फ्रेंड्स आर फीलिंग फिक्स्ड और फाइनेंशियल टाइटनेस है, तो उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प नहीं होगी तो वो कैसे आगे आएंगे। दो गवर्नमेंट ने एक और स्कीम चलाई जो एसबीआई के माध्यम से समिया स्कीम आई, लेकिन उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन काफी ही स्लो है। अब हालांकि फास्ट ट्रैक में काम शुरू हो गया है, लेकिन वो आई बहुत समय पहले थी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब कुछ प्रोजेक्टों में आनी शुरू हुई है। गवर्नमेंट करना चाहती है, गवर्नमेंट कर रही है, और मेरा इसमें कहना ही है कि हमारी, मैं जहां से बात शुरू की थी कि देयर इज द रेजिस्टेंस टू चेंज विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, उस रेजिस्टेंस को हम हटा के अगर फास्ट ट्रैक में जो नई डेवलपमेंट्स है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो भी स्ट्रक प्रोजेक्ट है उनको भी बड़े अच्छे से हम फास्ट ट्रैक में कंप्लीट कर पाएंगे,
एंड दोबारा से ही चाहे एनसीआर हो, चाहे पूरा इंडिया हो, वहां पे हम एक सद्भावना देख पाएंगे, एक खुशहाली का माहौल देख पाएंगे, जिसमें भी किसी भी कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके घर उनको समय पे मिल जाएगी। मेरा बेसिक तो पॉइंट यही है इस प्लेटफॉर्म पे कहने का। और बाकी और भी बड़े सारे कोर्ट्स में ऑर्डर दिए हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज में नहीं होती है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम अभी भी आगे ही बढ़ती जा रही है। समय ही समय मिलता जा रहा है, लेकिन कोई एक्शनेबिलिटी नहीं होती है। तो एक जो पॉलिसी पैरालिसिस है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में डिले है, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। हम जितने मर्जी पैसे लगा दें, उसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरिंग करना ही पड़ता है। तो वहां पे इंटरेस्ट फैक्टर काम हो ना हो, वो इंटरेस्ट फैक्टर रेगुलर आता रहता है। तो इसलिए प्रोजेक्ट काफी ही सोच समझ के करने पड़ रहे हैं और बहुत ही प्रोजेक्ट नेगेटिव हुए पड़े हैं। तो इसमें सोचने की जरूरत है। एंड इस प्लेटफॉर्म पे लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि रेरा इज ए वेरी पॉजिटिव रे in real estate industry in bridging the gap between the consumer and the developers. Thank you very much. Over to Pankaj ji. थैंक यू दीपक जी फॉर शेयरिंग वंडरफुल इनसाइट्स। आई थिंक आपने बहुत सारे सजेशन दिए हैं और बहुत सारा मेरे ख्याल से होमवर्क भी दिया है, शायद बलविंदर जी को भी और शायद गवर्नमेंट के ऑफिशियल को भी, क्योंकि ये नवल जी जो है हमारे, वो गवर्नमेंट को काफी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक नवल जी आपको भी काफी होमवर्क मिल गया है। हमारे जो दोनों अभी स्पीकर सर ये सर सॉरी टू इंट्रूड, मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये इंडस्ट्री के लिए है सर, सबका भला हो जाएगा, उसी में हम सबका भला है। खाली एक का भला नहीं चाहिए, सबका भला चाहिए, तो सब इंडस्ट्री अच्छी हो जाएगी। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। पंकज जी, मैं एक चीज क्लियर कर लूं, मैं गवर्नमेंट को कहीं से भी रिप्रेजेंट नहीं करता। आई एम जस्ट पार्ट ऑफ सम थिंक टैंक्स। So now I would request Shri Manish Kumar ji, Senior Vice President FOA, to share his thoughts. थैंक यू पंकज जी। एंड आज के प्रोग्राम में सभी एमिनेंट स्पीकर्स को मेरा नमस्कार। वैसे तो स्ट्रक प्रोजेक्ट्स के मामले में बलविंदर सर ने, अमित मोदी जी ने, दीपक कपूर जी ने काफ़ी बातें कही हैं जो कि ट्रूथ है। और जब तक कि मतलब अगर हमें स्ट्रक प्रोजेक्ट्स को अगर चालू करना है फिर से, तो जब तक ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि रेरा ऑलरेडी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे एनसीआर के, उन सब का सर्वे है रेरा के पास, विच आर विएबल, विच आर नॉन विएबल एज ऑफ नाउ। जितने भी वायबल प्रोजेक्ट्स हैं एज ऑन टुडे, उनको स्ट्रेस फंड दिलाया जाए। यही बात हमारे दीपक जी ने भी बोला है, मोदी जी ने भी बोला है, अमित मोदी जी ने, कि जितने भी वायबल प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको स्ट्रेस फंड दिलाया जाए ताकि वो प्रोजेक्ट चालू होकर और कंप्लीट हो सके। और या जितने भी नॉन वायबल प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे मैं बलविंदर जी से कहना चाहूंगा कि सर वैसे प्रोजेक्ट्स में बिल्डर बिल्कुल भी हालत में नहीं है कि वो उसको पूरा कर सके, तो वहां पे बिल्डर को आउट करके, जैसे कि आम्रपाली वाले मैटर में एनबीसीसी है, ठीक है, तो उसी तरीके से जितने भी नॉन वायबल प्रोजेक्ट्स हैं उन पे एनबीसीसी या उस तरीके का कोई और को डेवलपर या कोई और कंस्ट्रक्शन कंपनी लाकर उनसे कंप्लीट कराया जाए। और उन पर्टिकुलर केसेस में कुछ एफआईआर इंक्रीज करके कुछ एक्स्ट्रा बनाने की इजाजत दी जाए, जिससे कि जितने भी मतलब जो डेवलप करने वाले हैं, जो को डेवलपर आएगा, जो एनबीसीसी हो या और भी कोई दूसरी कंपनी हो, उनको जो वो फंड लगा रहे वो फंड वो उससे निकाल सकें। अगर मान लिया कि हमने एफआईआर जो है उस प्रोजेक्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा एफआईआर दिया गया, एक्स्ट्रा एफआईआर की वजह से फ्लैट्स ज्यादा बन सकते, तो जो भी फ्लैट ज्यादा बनेगा उसको बेचकर जो डेवलपर है, एनबीसीसी हो चाहे कोई और भी हो, वो उसको बेचकर और अपना जो भी उसमें इनपुट्स लगा है वो रिकवर कर सकता है। इसके अलावा जो बलविंदर जी ने एक स्टार्टिंग में काफी अच्छी बात कही थी, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि रेरा के पास में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बायर्स हैं, उनका रिकॉर्ड रेरा को आराम से मिल सकता, चाहे वो डेवलपर के थ्रू मिले, चाहे वो अथॉरिटीज के थ्रू मिले। तो रेरा को ही यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए
जितने भी वहां पे फ्लैट बायर्स हैं, जितने भी खरीदार हैं, उन सबको मैसेज करके या तो फिर ईमेल करके कि आप लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स में एसोसिएशन बनाइए, और एसोसिएशन बनाकर और फिर जो ये स्ट्रक प्रोजेक्ट्स है उसको आगे पूरा करने के लिए हमसे मिलिए, हम इसको जो है तो फिर और आगे ले जाया जा सके। तो मैं इन्हीं सजेशन के साथ में अपनी बातें समाप्त करूंगा। बाद में अगर कुछ और क्वेश्चंस आते हैं तो देन आई एम आल्सो रेडी टू स्पीक अगेन। थैंक यू। Thank you, Manish Kumar ji. You have shared very good perspective from the buyer's angle. So, because you know that association of LOTs are also now playing a key role in the stuck projects. Balwinder sir have already shared these thoughts. So, I think you have rightly pointed out the thoughts from the buyer's perspective. Now, I would invite Shri Naval Bajaj ji to share your thoughts. बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। माननीय बलविंदर जी, दीपक जी, अमित मोदी जी, मनीष जी के सब व्यूज सुनने के बाद आई थिंक काफी चीजें ऑलरेडी जो मैंने प्लान की थी कि मैं बोलूंगा कवर हो चुकी है। सो आई विल रादर फोकस ऑन द थिंग्स व्हिच हैव नॉट बीन डिस्कस्ड। मैं एक पर्सपेक्टिव, एक परिप्रेक्ष्य जरूर रखना चाहूंगा ऑडियंस के साथ कि अभी तक जो भी बात हुई वो शायद यूपी रेरा के बारे में हुई, लेकिन यूपी रेरा में और बलविंदर जी ने काफी अच्छे तरीके से सबके सामने ये बात रखी कि क्या हम कर पाए हैं और क्या नहीं कर पाए हैं, एंड आई विल रियली एडमायर हिम फॉर दैट। बट जब हम देखें कि पूरे भारतवर्ष के परिवेश में क्या हो रहा है तो हम देखेंगे कि यूपी रेरा ने बाकियों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा काम किया, और इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मैं देना चाहूंगा। बट टू स्टार्ट विथ, पहली चीज मैं ये जरूर कहना चाहता हूं एज पार्ट ऑफ सम थिंक टैंक्स दैट जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है इसको ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। ये सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है कंट्री के अंदर, और जो एक एक्सपेक्टेशन है, जो कुछ फोरकास्ट हैं उसके मुताबिक $1 ट्रिलियन 2030 तक होने का अनुमान है, और 2025 तक 13% कंट्री का जो जीडीपी है वो इसी सेक्टर से आने वाला है। तो कहीं से भी इसकी इंपॉर्टेंस में कोई भी डाउट किसी को भी नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए ये फोकस में भी है। अब जब हम बात करें कि हम बना कितने रहे हैं यूनिट्स और कितनों की जरूरत है, एक इकोनॉमिक टाइम्स हाउसिंग फाइनेंस समिट एक हुआ था रिसेंटली जिसमें ये बात आई कि 1000 about 3 houses are currently being built per 1000 people per year, but the actual requirement is 5 houses per 1000 population. तो हमारा ऑलरेडी शॉर्टफॉल है, जितने की जरूरत है और जितना बन रहा है। जो करंट शॉर्टेज है हाउसिंग में अर्बन एरियाज में एस्टिमेटेड टू बी 10 मिलियन यूनिट्स, और एक एडिशनल 25 मिलियन यूनिट्स अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत है 2030 तक टू मीट द ग्रोथ इन द कंट्रीज अर्बन पॉपुलेशन एज पर एस्टिमेट्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म आउटलुक पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इज द थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ FDI inflow, and FDI in the sector including construction, development and activities was $50.8 billion between April 2000 and March 2021. And Indian जो real estate है, and I am not saying only residential but overall real estate, it will attract a substantial amount of FDI in the next 2 years as per an estimate to the tune of $8 billion capital infusion by financial year 2022. 31 मार्च 2022 से पहले ये एस्टिमेट है कि इतना पैसा FDI के तौर पे इसमें आएगा। तो जब हम बात करते हैं कि हम ग्लोबली कैसा कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी में या ट्रस्ट में जिसकी बात आई, तो इंडियन जो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है उसमें हम अब 34 पोजीशन पे आ गए हैं, 2019 में आ गए थे ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ रेरा एंड बेटर मार्केट डेटा वगैरह, जो एक JLL की एक रिपोर्ट है उसके बेसिस में मैं कह रहा हूं। तो ये सब जो परिप्रेक्ष्य है ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं।
अभी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने की जरूरत है। इसीलिए ये जो इंडियन रेरा फोरम है, आपने जो मंच बनाया है, इस तरह के फोरम्स इसमें मदद करते हैं। अब हम अगर करंट ट्रेंड्स पे, इंडिया लेवल ट्रेंड्स पे आ जाएं, तो जो रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं उन्होंने जो पिछले 2 साल हैं खासकर, उनकी जो सेल्स हुई हैं, जो बड़ी ब्रांडेड कंपनी है या लिस्टेड कंपनियां हैं रियल एस्टेट में, स्पेशली हाउसिंग सेक्टर के अंदर, उन्होंने अच्छा बिजनेस किया है और जो दूसरी कंपनियां हैं उन्होंने थोड़ा कम बिजनेस किया है। इसमें भी ट्रस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बायर्स ने जो है ट्रस्ट ज्यादा शो किया उन कंपनीज के ऊपर जिनकी सॉल्वेंसी पोजीशन, जिनकी लिक्विडिटी और उनके और ट्रांसपेरेंसी और बाकी सब चीजों के ऊपर डाउट नहीं था। अगर हम वैसे बात करें, अगर हम प्राइसेस इंक्रीज की बात करें, तो एनसीआर के अंदर एज पर द स्टडी अवेलेबल विद मी 2017 से लेकर फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में सिर्फ 1.8% जो है मार्केट प्राइस बढ़ा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें बाकी जगहों से, अगर हम बैंगलोर से कंपेयर करें फॉर एग्जांपल, तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 6.5%, विच इज द बेस्ट इन इंडिया। इसका मतलब यह है कि रिटर्न ज्यादा आया नहीं पिछले कुछ सालों में, और उसका कारण सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हम डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और बहुत सारी चीजें, हम एनपीए के ऊपर टाइटर कंट्रोल, वो सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसमें नहीं घुसूंगा। लेकिन अगर हम रिसेंटली मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज ने अभी प्रपोज किया है कि वो सर्कल रेट्स बढ़ा देंगे टू द ट्यून ऑफ अराउंड 40%। दैट ऑल्सो शोज दैट अथॉरिटी इज वेरी होपफुल कि आगे जाके प्रॉपर्टी के प्राइसेस इंक्रीज होने वाले। एंड अगर हम आईसीआरए की रिपोर्ट देखें, जो ब्रॉडर मार्केट है, while the broader market remained 24% below pre-COVID levels on a year-on-year basis in Q3 of financial year 21, which is now, top 10 listed realty players witnessed 61% year-on-year growth in the same quarter. But overall अगर हम देखें तो होम की जो सेल्स हैं वो 18% कम हुई। अब ये सब अगर डेटा पॉइंट्स जो मैंने बताए, इसको अगर हम देखें और इसको कंपेयर करें चाइना में क्या हो, तो चाइना ने प्राइवेट इक्विटी फंड्स के अंदर उनको मना कर दिया है टू रेज फंड्स टू इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स। इसका मतलब वहां पे भी जब प्रॉपर्टी बूम था तो उस वक्त डेवलपर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप्स लेके कुछ स्ट्रेस आया और सब चीजें सिमिलर टू अस, आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स, हुई, और जिसकी वजह से चाइना की गवर्नमेंट भी अब उनको भी रेस्ट्रेन कर रही है। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया का ट्रेंड है, ये हमारे पड़ोस में भी है, इतनी बड़ी कंट्रीज में भी हो रहा है। एंड अगर हम अब मैं स्पेसिफिकली रेरा से स्पेसिफिक बात पे आता हूं, जो पूरे इंडिया लेवल की बात अगर हम करें, अगर 10 जुलाई 2021 की मैं बात करूं, तब का स्टेटस है कि टोटल 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव नोटिफाइड रूल्स अंडर रेरा। नागालैंड और वेस्ट बंगाल में अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, बाकी जगह है। उसमें से 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने में से 28 ऑफ देम हैव सेट अप अ रियल एस्टेट एपेलेट ट्राइब्यूनल आल्सो, एंड 14 आर येट टू अपॉइंट एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आल्सो। सो इसका मतलब क्या है कि यूपी रेरा इज मच एडवांस्ड इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस। एंड नाउ कमिंग टू द व्हाटएवर डिस्कशन वी हैव डन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड डिस्कशन की अगर हम बात करें, बलविंदर सर ने बड़े अच्छे से डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे कि उत्तर प्रदेश में 28,000 के आसपास केसेस डिस्पेंस हुए हैं रेरा में। इसको अगर हम कंपेयर करें कि उत्तर प्रदेश में 3033, ये मैं एक मिंट की एक रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूं, जिसमें रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स 3033 हैं और 27,825 जो केसेस हैं वो डिस्पोज ऑफ किए हैं रेरा अथॉरिटी। इन कंपैरिजन टू दैट, अगर हम बात करें मुंबई की, महाराष्ट्र की, वहां पे 31,000 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं और रेरा ने सिर्फ 10,000 केसेस डिस्पोज ऑफ किए हैं। अगर हम इसमें बात करें कर्नाटका की, तो 4,000 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हुए और 2,900 सिर्फ केस डिसाइड हुए। इससे भी ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे यूपी रेरा में प्रोएक्टिवली काम हुआ है, डिसीजन जल्दी हुए हैं और ऑर्डर पास किए गए। सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट
यूपी रेरा फॉर दैट। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि भाई ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो मैं अब सीधा सॉल्यूशंस की बात करूंगा। जो मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स हैं, बिकॉज समय थोड़ा सीमित है, तो मेरा जो पर्सनल व्यू, पहला मानना ये है कि हमें रियल एस्टेट का जो ये हाउसिंग वाला जो सेक्टर है स्पेशली, इसको थोड़ा अलग परिप्रेक्ष्य में देखने की शायद जरूरत है। कहीं ना कहीं इसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, हमारे जो लॉज हैं अभी उसको फुलफिल नहीं करते। हो क्या रहा है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अपना पैसा देते हैं बिल्डर को, या बैंक से लोन लेके बिल्डर को पैसा देते हैं। बिल्डर प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा है, बिल्डर सपना बेचता है। वो आपको एक बना बनाया मॉडल दिखाता है कि ये आपका सपनों का घर होने वाला है, और बायर उसको जाके खरीदता है। तो वो सपनों का घर बनेगा या नहीं बनेगा, इसके ऊपर रेरा से पहले तो कुछ मॉनिटरिंग थी ही नहीं। अब रेरा के बाद चलो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में मॉनिटरिंग हो गई, लेकिन किस लेवल की हुई उस पे अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बट जिन पे नहीं हुई वो अब फंस गए, तो सपना मिला नहीं, सपना पूरा हुआ नहीं। अब अगर सपना पूरा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है कि दोबारा ऐसा ना हो। उसके लिए क्या हमें इसको पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्या इसके ऊपर फर्दर टाइटन करने की जरूरत है? क्या इसका रेगुलेटर और ज्यादा डीपली इन्वॉल्व होना चाहिए? अगर हम देखें, बैंक्स को देखें, तो बैंक्स में भी पब्लिक अपना पैसा लगाती है और बैंक्स उसको फर्दर लेंड करके अपना पैसा बनाते हैं और इकोनॉमी को चलाते हैं। एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी लाखों लोगों ने पैसा लगाया होता है, डिपॉजिट्स लगाए होते हैं, उसमें बैंक्स का पैसा भी है, पब्लिक इंटरेस्ट है, लेकिन उसको रेरा उतने डिटेल में नहीं देखता। और मैं सिर्फ यूपी रेरा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मतलब ओवरऑल रेरा एक एक्ट की बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की जरूरत है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं क्या वो इसके लिए परफेक्ट हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये रखना चाहता हूं कि जो एग्जिस्टिंग जो स्टक प्रोजेक्ट्स के लिए भी जो सॉल्यूशंस आज की डेट में यूज करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस रेरा के अंदर हैं, चाहे वो कुछ लोग एनसीएलटी चले जाते हैं, चाहे वो ईओडब्ल्यू है, कोई भी इस तरह का लॉ जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो स्टक प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने के लिए बना ही नहीं है। अगर हम एनसीएलटी देखें तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और बाकी के क्रेडिटर्स को फोकस करके बना था कि जो बिजनेस है उसको कैसे रिवाइव किया जाए, स्ट्रेस्ड बिजनेस को कैसे किया जाए। जो यहाँ की जो यूनिक सिचुएशंस हैं उसमें तो कहीं ना कहीं अगर एनसीएलटी में जाके लिक्विडेशन प्रोसेस हो जाता है तो बायर्स को उल्टा लॉस हो जाता है। तो एनसीएलटी इज ऑल्सो नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। ईओडब्ल्यू में जाते हैं तो बिल्डर अंदर चले जाएगा, क्रिमिनल कंप्लेंट, उससे भी शायद प्रोजेक्ट स्टक हो जाए। तो मैं एग्री करता हूं जो मोदी साहब ने बात की और दीपक जी ने बात की, कपूर साहब ने बात की कि को डेवलपर पॉलिसी और जॉइंट डेवलपमेंट पॉलिसी के ऊपर बात होनी चाहिए। एक और बात जहन में आती है कि जो सोसाइटी में बलविंदर सर ने बोला कि हम कहते हैं कि सोसाइटी बना के आए बायर्स। सर सोसाइटी के भी जो बायलॉज हैं आज की डेट में, आप उनको अपार्टमेंट ऑफ एसोसिएशन के अंदर तो आप आरडब्ल्यू की तरह तो रजिस्टर कर नहीं सकते, तो आप उनको रजिस्टर करते हो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। जब वो लोग जाते हैं रजिस्टर कराने के लिए तो उनको मैंडेटरी बायलॉज पकड़ा दिए जाते हैं विच हैव नो कोरिलेशन व्हाटसोएवर with the objective for which the society is bidding for। तो वो जब बनती है उसके बाद में जब पूरी बॉडी बन जाएगी फिर जाके वो रिवाइज होंगे। तो ये ऑपरेशनल हैसल ही सही, लेकिन हैसल तो है। और कन्विंस करना इतने सारे लोगों को, हजारों लोगों को कि आप आके सब सोसाइटी में आ जाओ, ये भी कोई मतलब इजी बात नहीं है। तो ये भी एक लॉ, दिस इज अनदर लॉ विच इज नॉट एट ऑल कंड्यूसिव टू द रिक्वायरमेंट ऑफ रिवाइविंग स्टक प्रोजेक्ट्स। अब मैं आता हूं इस बात पे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू आज की डेट में स्टक प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो है कि फंडिंग। जो बाकी पैनलिस्ट ने बात की, तो फंडिंग के ऊपर एक मेरा विचार जरूर मैं रखना चाहूंगा कि अभी तक हम सिर्फ फंडिंग के लिए अपने रिसोर्सेज, अपने आसपास के रिसोर्सेज और स्ट्रेस फंड गवर्नमेंट से मिल जाए या उस तरीके की सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो 18 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का पैसा नेगेटिव इंटरेस्ट में पड़ा हुआ है, डिपॉजिट्स में पड़ा हुआ है, आइडल कैपिटल।
we need to explore as a country, we need to explore how we bring this cheaper capital to our country. How we can bring this cheap capital. अभी जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसके मुताबिक 12% के आसपास का इंटरेस्ट जो स्ट्रेस फंड है उस पे लगता है, और अगर जो बाकी के हमारे जो फंडिंग के सॉल्यूशंस हैं उसमें 18% तक बिल्डर्स जो हैं वो फाइनेंसिंग लेके आगे काम कर रहे हैं। तो वो अपने आप में अगर हम प्रॉपर्टी की मार्केट के प्राइसेस का इंक्रीमेंट देखें जो 6% भी नहीं है, और एनसीआर में तो 1.8% रहा, वर्सेस जो 18% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा वो अनवायबल हो जाता है। तो क्या हमें एक सॉल्यूशन एफडीआई रूट से, या जो ग्लोबल फंड्स आइडल पड़े हुए हैं उनको कैसे हम अट्रैक्ट करें, और उसके लिए हमारे को रेरा के जो लॉज हैं और जो रियल एस्टेट से रिलेटेड लॉज हैं उनको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इसमें मैं बस कंक्लूजन की तरफ ही जा रहा हूं, और 2-3 पॉइंट बस और जरूर कहूंगा कि एक प्रूडेंट प्रैक्टिसेस बाय बिल्डर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल जो ये अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट था कि फाइनेंसर बीओपी हो चाहे इन्वेस्टर क्लिनिक हो अपने नोएडा में या कोई और हो, वो पहले अंडर राइट कर लेंगे और फिर आप चलाएंगे और कमीशन बेसिस पे काम चलता रहेगा, उससे भी काफी प्रॉब्लम्स हुई। सो हमारी फंडिंग, हमारा कैश फ्लो किस तरीके से कैसे मूव करेगा उसके ऊपर प्रूडेंट रहने की जरूरत है। और मार्केट प्राइस की बात हुई तो मैं एग्री करता हूं कि मार्केट प्राइस तभी इंक्रीज होगा जब ट्रस्ट इंक्रीज होगा, जो ऑलरेडी हो रहा है, बट ट्रस्ट तभी इंक्रीज होगा जब काम ग्राउंड पे दिखेगा, और काम दिखेगा जब फंड आएगा। तो फंडिंग के ऊपर सबसे पहले बात होने की जरूरत है कि फंड कैसे आए। और दूसरी बात यह है कि जो फंड डाइवर्ट हुए हैं, ट्रस्ट तब भी आएगा जो फंड डाइवर्ट हुए हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। जैसे किसी ने, मैं चैट बॉक्स पढ़ रहा था, लिखा था कि ऑडिट हुआ, फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। तो इस तरह की जब चीज सामने आती है तो ट्रस्ट गिरता है। तो ट्रस्ट तभी आएगा जब इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके ऊपर एक्शन होगा। प्लस ट्रस्ट एक और जो बेसिक स्ट्रक्चरल गलती शायद हुई है वो ये है कि भाई जब लैंड दी गई तो 10% का अमाउंट लेके लैंड दे दी गई। आपकी पूरी सॉल्वेंसी क्या है, आपकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो, इसको नहीं देखा गया। तो जो मेरा जो मेन प्रपोजल है वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट को अगर ध्यान में रखा जाए तो एलोकेशन ऑफ लैंड से लेके कितना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसको लेके, और कितने लोन की एलोकेशन है, एंड टू एंड। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आरबीआई एक बैंक को रेगुलेट करता है, पूरी इंडिपेंडेंस देता है, फिर भी रेगुलेट करता है कि तुम कहां कहां क्या क्या कर रहे हो। उस तरीके से, उस सोच से अगर रेरा अथॉरिटी एंड टू एंड जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं स्पेशली फाइनेंस रिलेटेड, कैश रिलेटेड, उनको मॉनिटर करेगी तो आगे आने वाले समय में शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ मैं ये अपना डेलिब्रेशन। Thank you, Navalji. I think you have covered most of the answers which I have just seen in the chat box. So now in token of just our as a recognition, we have pleasure to share certificate of recognition for today's chief guest and our eminent speakers. So I'm really very thankful to Balvinder sir who has spared time. So thank you so much, sir. You have spared your time and shared your wonderful insights. So I think a lot of insights he has shared because I requested him to share some insights which are not in direct public domain. So I think he has made his role very clear, and a lot of insights, some tips which he has shared is there definitely will be very, very helpful for all the stakeholders of our real estate. And I'm also very thankful to Shri Amit Modi ji, who also spared his time and shared his valuable insights. Shri Deepak Kapoor ji, thank you so much, sir. Thank you so much. You're welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. Thank you. Shri Manish Kumar ji, thank you so much. Thank you, sir. Shri Naval Bajaj ji, thank you so much for sharing your thoughts and insights. Thank you, sir.
So now I think most of the questions have already been covered by our panelists. So I think the panelists can share any question, whatever the question have in the chat box, they have already written. So what I will do, we will just moderate these questions because some questions are very lengthy. So in the interest of time, what we will do, we will just moderate these questions and then send to the respective speakers or our chief guest and then seek the answers. So thank you so much. So with this, I would like to close the session. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you all. Thank you all. Thank you. सभी को नमस्ते. Thank you. Sir. Thank you.